लिए है। Good afternoon, everyone. Yesterday we have dealt about the transportation in human being. The topic yesterday, my topic was transportation in human being. Today, you can see my topic, plant transport system. In plant transport system, we will read about xylem and phloem, because these two tissues help in transportation. Now see, transportation in plants refers to the movement of water and minerals from the root to different parts of the plant. ठीक है, फर्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. एंड सेकेंड, it also includes the movement of the food prepared by the leaves to the entire plant. तो दो टॉपिक आज डील करेंगे हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, याद रखना, इज ऑल्सो नोन एज एसेंट ऑफ सैप. ठीक है, movement of water and mineral, it is also known as ascent of sap. इसके लिए एक वर्ड है ascent of sap, उसको हम लोग डील करेंगे. और movement of food prepared by leaves, for that it has a word known as ट्रांसलोकेशन. ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर, एसेंट ऑफ सैप बोलेंगे, एंड मूवमेंट ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन. राइट, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, नंबर 1, जो नंबर 1 है वो क्या शो कर रहा है? डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन, यू हैव रेड इन junior classes also, that diffusion is a process by which molecules move from its higher concentration to its lower concentration. यहाँ पर बहुत सारे ब्लू पार्टिकल्स हैं, इधर नहीं है, तो ये आराम से आ जा रहा है. नो एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस. तो ये हो गया नंबर 1, सिंपल डिफ्यूजन. देन number 2, facilitated diffusion, means some molecules help in diffusion of substances. So these two, number 1 and number 2, is also considered as passive transport. है ना? ये जो diffusion है या facilitated diffusion है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? passive transport. And active transport, in active transport, याद रखेंगे. In passive transport, different types of diffusion is there, या osmosis या diffusion, ये है passive transport में. Active transport में, here by spending energy in the form of ATP, ये जो ATP है
इसको यूज करके मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन भी आ सकता है। यहाँ पर कम है, लेकिन यहां से भी सब्सटेंस किधर आ रहा है, इधर। कैसे? बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मीन in this active transport, energy is utilized, energy is expended, and by spending energy from lower concentration to higher concentration भी substance को लाते हैं. For example, food preparation that is done by leaves and they are stored in sometimes root also. कुछ कुछ रूट तुम खाते हो जैसे कैरेट, रेडिश, है ना? तो ये सारा कहाँ पर, लीफ में बन रहा है और वो फिर कहाँ आके स्टोर हो रहा है, इन द रूट. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. डिफ्यूजन, facilitated diffusion, these are also considered as passive transport, and then active transport by spending energy. Next, two types of plants are there. अगर तुम classification याद कर रहे हो तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा. ठीक है? These two, थैलोफाइटा and ब्रायोफाइटा, are considered in थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा जो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, दे आर नॉन वस्कुलर प्लांट्स. उनमें क्या नहीं है? जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है. और ये जैसे मॉसेस एंड ब्रायोफाइट्स अभी बताए, है ना? दीज थैलोफाइट, ब्रायोफाइट्स, दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड बाय सिंपल डिफ्यूजन, इनके पास कोई जाइलम नहीं है, कोई फ्लोएम नहीं है. बाय सिंपल डिफ्यूजन दे meet their requirement of water. But some plants are very huge and they have vessels to transport or transfer water and nutrients. तो वस्कुलर प्लांट्स में कौन आ जाएंगे? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एक्सेट्रा. Now you can see here, vascular plants have specialized leaves and stems to get carbon dioxide and light from above ground. Means from its upper surface, लीफ से, स्टेम से वो क्या ले सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट. Vascular plants have underground root system. Vascular plants have underground root system, है ना? Well developed root system होता है to absorb water and minerals from ground. Some roots have root hairs to increase water absorption. Now suppose if you cut the cross section of root, अगर तुम रूट के क्रॉस सेक्शन को काटते हो, रूट का हम ऐसे करके क्रॉस सेक्शन काटते हैं, स्लाइड काटते हैं, तो वी हैव हियर एपिडर्मल सेल. ठीक है? एपिडर्मल सेल है.
like this. These are root hairs. Means some epidermal cells of root, है ना, they have an elongation or modification to form root hairs, and first they absorb water from the soil. नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग. वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट. It is absorbed by active absorption and passive absorption. Active absorption में देखेंगे, you can see here, active absorption takes place by the activity of root and root hair. Root and root hair, they absorb water which is present in soil. The pressure for absorption is not developed in root and hence root play passive role. है ना. यहाँ पर क्या है, ये रूट तुम्हारा, जैसे कि सपोज तुम्हारे घर में अगर पानी चढ़ाना है तो उसके लिए तुम क्या करते हो, वो एनर्जी खर्च करके, इलेक्ट्रिसिटी खर्च करके हम पंप चलाते हैं और तब ऊपर पानी टंकी में भरता है. तो यहाँ पर जब लीव्स में भी पानी की जरूरत है, बिकॉज फॉर फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नीडेड. So water is needed by leaves or stems at the upper portion. तो वहां पर एक पुल होता है जिसको हम लोग बाद में अभी देखेंगे. नेक्स्ट देखेंगे, ट्रांसपीरेशन हैज नो इफेक्ट ऑन एक्टिव एब्जॉर्प्शन, है ना. एक्टिव एब्जॉर्प्शन में ट्रांसपीरेशन का, ट्रांसपीरेशन, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन इज द removal of water in the form of water vapor. Transpiration क्या है? Removal of water transpiration, removal of water. In the form of water vapor from upper portion of the plant. तो ट्रांसपीरेशन का एक्टिव एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं है, बट ट्रांसपीरेशन एब्जॉर्प्शन रेगुलेटेड बाय ट्रांसपीरेशन, है ना. हम लोग देखेंगे आगे कि हाउ continuous transpiration from the leaves make a suction pressure due to which water moves in upward direction. Suppose cold drink पी रहे हो तुम with the help of a straw, है ना, straw से तुम cold drink पी रहे हो, तो तुम क्या करते हो? First you suck air, जो एयर प्रेजेंट है उसको तुम जो स्ट्रॉ में उसको सक करते हो, एंड एट दैट टाइम लिक्विड मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. जो भी तुम पी रहे हो वो किस में चला जाता है? अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है. तो यहाँ भी कंटिन्यूअस ट्रांसपीरेशन फ्रॉम लीव्स, ये जो ट्रांसपीरेशन है, कंटिन्यूअस ट्रांसपीरेशन क्रिएट्स अ सक्शन प्रेशर. Continuous transpiration from leaves create a suction pressure and due to which water moves in upward direction. The root hairs have high DPD. DPD,
टीपीडी मीन्स प्रेशर डेवलपमेंट जो होता है वो सॉइल से ज्यादा है टुवर्ड्स द रूट और रूट हेयर. और हियर इन पैसिव ट्रांसपोर्ट ट्रांसपीरेशन पुल, यही जो हम बताए कि कंटिन्यूअस जो वाटर का लॉस हो रहा है, कहां से, लीफ से. क्यों? ड्यू टू ट्रांसपीरेशन क्रिएट्स अ रेस्पिरेशन पूल और सक्शन प्रेशर. एनर्जी इज नीडेड, energy is respiratory energy not required. So this is about active and passive absorption. नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं. जाइलम. अब जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, तो जाइलम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन जाइलम. अगर जाइलम क्लास 9 में पढ़े हैं और याद है, तो इट हैज 4 सेल्स. 4 सेल्स है इसके इसके पास. फोर टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर. नंबर 1, यहाँ पे 2 है, ट्रैकेट, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. जाइलम फाइबर या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा. तो ये 4 एलिमेंट्स आर देयर इन जाइलम. जाइलम जो टिश्यू है ये 4 एलिमेंट से बना है. नंबर 1 ट्रैकेट, नंबर 2 वेसल्स, नंबर 3 जाइलम पैरेन्काइमा, नंबर 4 xylem fiber or xylem sclerenchyma. Now, among these 4, these two play an important role. ये tracheids and vessels है ना, they are long tubular structure. Their end walls are dissolved. उनका जो end walls है वो क्या है, dissolved है. और वो एक लंबा पाइप के जैसा वो उसको स्ट्रक्चर देते हैं. एंड दैट इज व्हाई दे आर. सो नंबर 1, carry water and nutrients means minerals from root to rest of the plant. Tracheids pointed ends and thick wall with pits that connect them to cells. Vessel elements wider, shorter, thinner walls and less tapered, and they help in transportation of. इनमें से चारों में से किनका ज्यादा रोल है? ट्रैकेट्स एंड वेसल्स का ज्यादा रोल है. नेक्स्ट यहां देख लेते हैं इस डायग्राम को कि यहां पर देख रहे हो तुम, यू कैन सी हियर प्लांट, हियर इट इज रूट एंड सॉइल. ये सॉइल है, रूट है, यहाँ वाटर है. बाय सिंपल डिफ्यूजन 3 स्टेप्स में वाटर का मूवमेंट होता है. फर्स्ट वन इज बाय सिंपल डिफ्यूजन, मीन्स फ्रॉम सॉइल टू रूट, है ना, रूट हेयर और एपिडर्मिस. ये हो गया सिंपल डिफ्यूजन. बाय सिंपल डिफ्यूजन है ना, मीन्स पानी किस में है, सॉइल में जाता है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, रूट हेयर में या एपिडर्मल सेल में, रूट एपिडर्मल सेल में चला जाता. नाउ सेकेंड स्टेप है ऑस्मोसिस.
ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस तुम लोग पहले भी पढ़े होंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल by movement of water molecules with the help of cell membrane. इसमें एक लिविंग थिंग की जरूरत है, from higher concentration to lower concentration. So by this, by the process of osmosis, water move up to few centimeters. फर्स्ट है सिंपल डिफ्यूजन, जब पानी डाले सॉइल में तो वो क्या हुआ, फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर और एपिडर्मल सेल में गया, दैट इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन. सेकेंड बाय ऑस्मोसिस मीन्स ड्यू टू सेल्यूलर प्रेशर, है ना, टर्जर प्रेशर, वाटर मॉलिक्यूल मूव अप टू फ्यू सेंटीमीटर्स, रूट जाइलम में कुछ दूर तक जा सकता है, कुछ दूर तक, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर. और उसके बाद थर्ड पॉइंट है ट्रांसपिरेशन पुल. जितेंद्र, उसको हम नहीं सकते हैं. हाँ, पॉइंट है. थर्ड, थर्ड थर्ड है ट्रांसपिरेशन पुल, है ना. अब क्या है, कंटिन्यूअस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स क्रिएट अ सक्शन प्रेशर. आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि कैसे तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तुम क्या करते हो, सक करते हो एयर, जगह खाली नहीं रहेगा तो वाटर क्या हो जाता है, ऊपर, या जो भी तुम पी रहे हो वो ऊपर आ जाता है. उसी तरह से लगातार पानी जो लीफ से निकल रहा है वो पानी को क्या करता है, ऊपर की तरफ खींचता है. So this is about 3 steps. एक क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, है ना, हाउ डज इट टेक प्लेस. तो ये 3 नंबर में आएगा, अगर तो हम ये 3 पॉइंट लिखेंगे, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड ट्रांसपिरेशन पुल. नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज अबाउट, अभी तक हम लोग जो भी देखे वो किसके बारे में देखे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलोकेशन. अब फ्लोएम, तुम अगर स्टैंडर्ड 9 का बात रिकॉल कर रहे हो तो फ्लोएम इज अ लिविंग टिश्यू एंड इट हैज ऑल्सो 4 कंपोनेंट. फ्लोएम के पास भी 4 कंपोनेंट्स हैं. क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो, कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम, फाइबर या फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, देन सीव ट्यूब, और कॉम्पेनियन. ये 4 कंपोनेंट हैं
फ्लोएम के, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। अमंग देम ये चारों में 3 लिविंग है ना? टाइम कम है। अच्छा, ये 3 लिविंग है और ये सिर्फ फ्लोएम फाइबर क्या है? डेड है, इसीलिए ये लिविंग टिश्यू कहलाता है। और सुगर एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल मस्ट मूव टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बनते तो ये कहाँ है? लीव्स में, लेकिन इनका मूवमेंट सब जगह होना चाहिए। फ्लोएम लिविंग सेल्स है, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू। और ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है? सुगर एंड अमाइनो एसिड और व्हाट आर द और all the things which is prepared in the leaves. These substances can move upward and downward. पानी हमेशा सिर्फ water always move in upward direction, but here unlike xylem it moves in upward direction as well as downward direction. Holes called sieve tube. sieve मतलब होता है चलनी, जो बोलते हैं ना घर में चालने वाला, उस तरह का हेल्प करता है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट आ जाते हैं। फ्लोएम का डायग्राम देख लो। सीप प्लेट, सीप ट्यूब मेम्ब्रेन, कंपेनियन सेल जो बगल बगल में है वो कंपेनियन सेल, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीप प्लेट है ये सीप ट्यूब मेम्ब्रेन है, ये पूरा सीप ट्यूब है, ठीक है। बगल बगल में ये कंपेनियन सेल एंड ये फ्लोएम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन और मूवमेंट ऑफ फूड from leaf to other tissues throughout the plant. It occurs throughout the plant. ऊपर भी होता है, upward direction and downward direction. Plant produce carbohydrate in their leaves by photosynthesis, but non-photosynthetic parts of the plant also require carbohydrate. Non-photosynthetic मतलब कम से कभी-कभी क्या होता है, रूट या